discussed about the Gibbs free energy, and there was slightly mistake, that is on the place of plus it should be minus. Means we have dealt about Gibbs free energy. G is equal to H minus T delta S, sorry Ts, and delta G is equal to delta H minus T delta S. This will be relationship. On the place of plus you must have to write this. Okay, how? Delta G equal to H minus Ts, we have dealt G1 for first state, J1 equal to H1 minus Ts1, and G2 equal to H2 minus Ts2. This is for second state of system, and this is for first state of system. If we have to calculate delta G, means G2 minus G1 is equal to H2 minus Ts2 minus H1 minus Ts1. In this case we get H2 minus H1 minus Ts2 minus Ts1, and we get here delta H minus T delta S. This relationship we have studied yesterday, and today we are going to discuss about the standard Gibbs free energy. Okay, so note down it. I hope you all have written it. Now we are going to discuss about standard Gibbs free energy. We have not to take tension about the standard Gibbs free energy. Standard Gibbs free energy change. Okay, because G is equal to H minus Ts is not in our work. We cannot calculate the Gibbs free energy, we can calculate the change in Gibbs free energy. Okay, so we consider here Gibbs free energy change. Okay, now if we want to write the definition of standard Gibbs free energy change, then we can write as the change in free energy which takes place, the change in free energy which takes place when the reactants in the standard form converted into the product form in standard state. It means delta G naught is equal to
डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट. What does it mean? What does it mean? It means Gibbs free energy, change in Gibbs free energy in standard form. How can we calculate? Standard enthalpy is given and standard entropy is given at what? Standard temperature and standard pressure. Standard temperature and standard pressure means temperature should be 298 Kelvin, okay, and this is and not ind, and pressure should be at 1 atm. ओके. स्टैंडर्ड में बेटा कुछ होता नहीं है. स्टैंडर्ड में करना क्या होता है कि जब भी आप स्टैंडर्ड निकालते हो, चाहे वो इंथैल्पी का निकालो, चाहे आप एंट्रोपी का निकालो, चाहे आप गिब्स फ्री एनर्जी का निकालो, जब भी आप स्टैंडर्ड चेंज निकालते हो, स्टैंडर्ड चेंज इन इंथैल्पी, स्टैंडर्ड चेंज इन एंट्रोपी, स्टैंडर्ड चेंज इन फ्री एनर्जी, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करते हो, टेम्परेचर को कितना रखोगे 298 केल्विन और प्रेशर को कितना होना चाहिए 1 atm होना चाहिए. क्लियर है ना? तो इसे आप जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे रिलेशनशिप पिक करते हैं. आई होप यू ऑल हैव रिटन इट. आई एम गोइंग टू इरेज. If we relate this with the reactions, then we can write as delta G naught for the any reaction is equal to, what can we write here, delta H, delta G product sum of formation of delta G product means sigma delta formation G naught minus sigma delta formation of reactant G naught. ठीक है, इस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये डेल्टा, ये फॉर्मेशन की जगह आप लिखो क्या, प्रोडक्ट लिख लो, प्रोडक्ट एंड दिस फॉर्मेशन यहां पर लिख लो रिएक्टेंट. ठीक है, ये रिएक्शन के लिए आपके पास एक फॉर्मूला मिल जाता है, सम ऑफ द गिब्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. It gives the complete Gibbs free energy in a standard form of the reaction. Okay? Means अब इसे डेफिनेशन लिखने की जरूरत तो है नहीं, आप इतने से पिक कर सकते हो. कोई एक रिएक्शन दिया रहेगा, उसमें आपका प्रोडक्ट का कुछ फॉर्म दिया रहेगा, कुछ रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट के जो गिब्स फ्री एनर्जी होंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म उसको हम सम कर देंगे, रिएक्टेंट के जो गिब्स फ्री एनर्जी होंगे उसको सम कर देंगे, और उसको हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट वाले को प्रोडक्ट से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. हमारा रिएक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म गिब्स फ्री एनर्जी चेंज आ जाएगा. क्लियर है ना? तो चलो इस पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. Let's deal a question here.
I have a question. Calculate delta G naught for the reaction. हाँ, एक बात और है बेटा, देखो यहां पर एक बात हमें याद आ गई। काफी स्टूडेंट को इस बात की कंफ्यूजन रहती है कि सर ये नॉट इस तरह से लिखा जाता है या फिर इस तरह से लिखा जाता है। आप चाहे जैसे लिखो बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप यहाँ 0 लिख सकते हो, 0 में माइनस लगा सकते हो, काट सकते हो, जैसे लिखो। अब इसका मतलब वहां डेल्टा नहीं बना देना, मतलब ये दोनों फॉर्म वैलिड है। क्लियर है? कहता है कि कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन एंड रिएक्शन इज जिंक सॉलिड प्लस copper 2 plus in aqueous solution gives Zn2 plus this is aqua and Cu solid. Okay, given that standard free energy for copper Cu2 plus is 2 plus aqua and Zn2 plus aqua are 65.1 kilojoule per mole and minus 147.2 kilojoule per mole क्या respectively. This is our question. Okay. बस सिंपल सी बात है। दिस इज आवर प्रोडक्ट, ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट। और ये क्या है? हमारा रिएक्टेंट। अब इन दोनों को गैस फ्री एनर्जी वाले फॉर्मूला पर पुट अप कर दो। व्हाट? डेल्टा जी नॉट is equal to sum of delta product Z naught minus sum of delta reactant Z naught. This will be ये कितना हो जाएगा? G नॉट ऑफ Zn2 प्लस G नॉट ऑफ Cu माइनस रिएक्टेंट G नॉट ऑफ Zn प्लस G नॉट ऑफ what? Copper 2 plus. For the value of this G naught of Zn2 plus, this is given minus 147.2 kilojoule per mole. Minus 147.2 plus G naught of any एलिमेंट, इंडिपेंडेंट एलिमेंट विल बी 0। ये आप लोग पहले से जानते हो। एंट्रोपी के केस में, एंथैल्पी के केस में, सब केस में ये क्या होता है? 0 होता है।
इंडिपेंडेंट एलिमेंट होगा तो उसका चाहे वो गिब्स फ्री एनर्जी हो, एंट्रोपी हो, एंथैल्पी हो, क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर है ना? तो ये क्या हो जाएगा, जीरो माइनस सेम प्रोसीजर हियर, इट विल बी जीरो प्लस दिस इज गिवन। कॉपर के लिए क्या है, 65.1 65.1। नाउ कैलकुलेट इट, we will get minus 212 point sorry 212.3 kilojoule per mole, and this is our delta G for reaction. Okay, this is our answer. Means such type of question is given here, zinc plus copper 2 plus aqueous, zinc 2 plus aqueous and copper solid. Is that? अब इसमें क्या हम देख रहे हैं कि गिवन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी जिसका दिया हुआ, जिसकी जरूरत पड़ेगी वो हमें दिया रहेगा और जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वो हमें नहीं दिया रहेगा। विल बी अप्रॉक्स जीरो। हमेशा ये जरूरी नहीं है, किसी में रिएक्टेंट्स के कुछ वैल्यूज दिए रहेंगे, जिसमें मान लो यहाँ पर तो इंडिपेंडेंट एलिमेंट दिया हुआ है, ये इंडिपेंडेंट एलिमेंट की जगह कुछ और भी हो सकता है। तो उस केस में आप क्या करोगे, इनके पूरे प्रोडक्ट के गिब्स फ्री एनर्जी को चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड फॉर्म मींस टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन एंड प्रेशर शुड बी 1 atm। क्लियर है ना? तो उसको आप कैलकुलेट कर लोगे प्रोडक्ट, देन कैलकुलेट रिएक्टेंट, आफ्टर दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट एंड वी गेट delta G naught reaction. Okay, then copy it first and we will continue after that. Now we have to take the relationship between standard free energy and equilibrium constant. Equilibrium constant के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो, केपी केसी वाला रिलेशनशिप याद है? तो उसमें यहां हमने क्या देखा कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू। ये एक रिलेशनशिप हमें मिलता है, ठीक है। ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट ये रिलेशनशिप है किसके बीच में, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, ठीक है। ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, अभी जस्ट हम लोग देखे थे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज में, एंड Q इज इक्वल टू के क्या है, देखो K को हम क्या कहते हैं, K एक कांस्टेंट होता है एंड Q क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन कोसेंट। इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, और इसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो Q किसके इक्वल हो जाएगा, K के। ये जीरो हो गया, डेल्टा G विल बी जीरो ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, वी टेक हियर डेल्टा G नॉट प्लस RT log E बेस के, log बेस E के, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT। जब ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस RT log बेस E के। एंड बेस E को अगर हम 10 के फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा G नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। कब, जब आपको log 10 के फॉर्म में चाहिए। क्लियर है? इस फॉर्मूले का हम बार बार यूज करेंगे जब हमें डेल्टा G नॉट निकालना होगा। R की वैल्यू आपको पता होगी, T दिया रहेगा और K भी दिया रहेगा। आगे अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो उसमें डेल्टा G नॉट इक्वल टू डेल्टा
एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ये तो हमें पता है। डेल्टा जी नॉट की जगह हम लिख सकते हैं यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट को हमने लिख दिया माइनस आर टी लॉग बेस ई के इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। इट गिव्स आर टी लॉग बेस ई के, अगर माइनस को हटाते हैं तो टी डेल्टा एस नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट होगा। लॉग बेस ई के इज इक्वल टू टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। मीन्स इफ यू हैव टू फाइंड के, अगर आपको k निकालना होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना होगा, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ओके, t delta s minus delta h upon RT. This will be in standard form. क्लियर है ना? अब यहां से एक बात आती है कि इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, अगर ये डेल्टा एच, जो डेल्टा एच दिया हुआ है, माइनस का सिंबल यहां नहीं लेना आप लोग, डेल्टा एच जो आपका आएगा वो अगर दिया है पॉजिटिव, देन log k ऑफ k और k log k लिखो या k हैज स्मॉल मैग्नीट्यूड फॉर हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन क्या होगा? हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन। और फॉर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन k विल बी डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। क्लियर है ना? तो इसे आप जल्दी से कवर कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं। Let's do a question related to on this formula. We have a question here. Question tells us that equilibrium constant, barium constant K for the reaction X plus Y, reversible reaction gives P plus Q at 300 Kelvin. 300 Kelvin is 3.5 into 10 to the power minus 4. Then we have to calculate standard free energy change for the reaction at 300 Kelvin under the given condition. Under the given conditions, is the reaction spontaneous? Is the reaction spontaneous? अब ये बताता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर के, ये यहां दिख नहीं रहा होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन x plus y, reversible reaction P plus Q at 300 Kelvin is 3.5 into 10 to the power minus 4. Calculate standard free energy change for the reaction at 300 Kelvin. हमें क्या करना क्या है? स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज निकालना है। ठीक है, ठीक है, चलो करते हैं। तो इसमें देखो
गिवन क्या है? पहले तो हमारे पास टेम्परेचर गिवन है, ठीक है। डेल्टा जी नॉट कितना दिया है? 3.5 इंटू 10 टू द पावर -4। नहीं होता है, डेल्टा जी तो निकालना है। ये होता है 2.303 RT log बेस E के, ठीक है, इन नेगेटिव फॉर्म। टी हमारे पास गिवन है। इसके बाद हमारे पास आर की वैल्यू हमें पता है। आर की वैल्यू कितना होता है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इसके बाद केपी की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 3.5 इंटू 10 टू द पावर -4। और टेम्परेचर आर मिल गया, टी मिल गया, आर है, टी भी है और के भी है। Then put all this value in this formula, we get delta G naught is equal to -2.303 into R 8.314 joule per Kelvin per mole multiplied by, this is R, temperature 300 multiplied by log बेस E, K की वैल्यू है 3.5 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, ठीक है। अब चलो इसे सॉल्व करते हैं। -2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू, देखो यहां क्या करोगे आप, log E। इसमें जब आप लिखते हो तो क्या लिखो, जब इसे आप तोड़ते हो तो हो जाता है log 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर -4 को क्या हम लिख सकते हैं, -4 प्लस, लिख सकते हैं ना भाई, log 10 -4 प्लस log 3.5, और log 3.5 की वैल्यू की कितनी होती है, log 3.5 की वैल्यू होती है 0.5441। ये लॉगरिथम आप लोग पढ़े हो, log बेस ए 3.5 इंटू 10 टू द पावर -4, तो जो माइनस मल्टीप्लाई में होता है वो क्या हो जाता है, इधर प्लस में आ जाता है। मीन्स log 10 -4, तो इसका ये -4 जो पावर में होता है उसे हम डायरेक्ट यहां लिख देते हैं, और 3.5 ये हो जाता है log में, log 3.5 की वैल्यू कितनी आती है, 0.5441। ओके, आफ्टर दैट यहां दिख रहा है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं कि -2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू, इन दोनों को आप अगर सॉल्व करते हो तो आपके पास आता है -3.4559। ठीक है, इसके बाद आ जाओ इधर, व्हाट वी गेट हियर, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 2.303 एंड 8.314, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास रिजल्ट आता है 19.1471, और 300 और इसको मल्टीप्लाई करोगे
तो क्या आएगा, ये माइनस में हुआ, मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिजल्ट कितना आता है 1036.77। ये भी किसमें आएगा, माइनस में। माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। फिर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट आता है 19.1471। 19.1471। 1985.18 जूल पर मोल। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 1985.18 जूल पर मोल अप्रॉक्स। ठीक है, तो करना इसमें कुछ नहीं है, कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए ढंग से, फास्ट कैलकुलेशन होना चाहिए, थोड़ी सी नहीं भी होगा तो चलेगा, आराम से करो बट करेक्ट आना चाहिए। What we have to do, first of all we have to find the value what is given in our questions. Temperature is given 300 Kelvin. Delta G naught equal to, हमें पता है, this is the formula for to find delta G naught equal to minus 2.303 RT log base K। अब इसमें R की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। K is given 3.5 into 10 to the power -4, है ना। Equilibrium constant K for the reaction this is 3.5 into 10 to the power -4। तो ये क्या है, K दिया है, K क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब इन सब की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुटअप कर दोगे, जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा, दैट इज चेंज इन फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है, जल्दी से आप इसको कॉपी कर लो। तो इसे आप कॉपी कर लोगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर some questions along with third law of thermodynamics. Third law of thermodynamics is not given in NCERT book, means this is not the topic you have to study, but I will repeat this topic because third law of thermodynamics is also important. Okay, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।